أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا جی، جب آپ اس طرح سے کلاس میں سلام کیا جائے تو سب ان میوٹ کر کے اونچی آواز میں سلام کا جواب دیا کریں، کوشش کیا کریں کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چلے اگر کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ آپ ان میوٹ نہ کر سکیں خود کو، لیکن کوشش کیا کریں کہ اسلام کا جواب دیں۔ یہ پہلا رسپانس ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے ٹیچر کو کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ آ گئے ہیں کلاس میں اور اٹینٹو بیٹھے ہیں۔ تو کیا جی، آپ سب کو سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد کہ الحمدللہ جو ہم نے اپنا کورس QC1 پہلا سبق 1A سے شروع کیا تھا، الحمدللہ 20AB تک کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ ہم نے اچیو کیا، ہم نے الحمدللہ سے 50% تک کے معنی سیکھ لیے۔ اب قرآن مجید میں آنے والے وہ تمام الفاظ جو ہم نے قرآن پاک سے سیکھے، جو ہم نے گرامر کے افعال سے سیکھے، وہ آپ آسانی سے ڈھونڈ بھی سکتے ہیں اور آپ ان کی واحد، جمع، مذکر، مؤنث، ماضی، مضارع ہر چیز کے بارے میں یہ آئیڈیا بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی، کتنے لوگوں کی بات ہو رہی یا کتنے لوگ بات کر رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک پہلا سٹیپ ہے۔ تو اب اس سیڑھی پہ آپ چڑھ گئے ہیں، اب آپ نے اس سلسلے کو رکنے نہیں دینا۔ انشاءاللہ اب ہم QC7 تک جائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم سیکھیں گے، اور انشاءاللہ QC2 جب ہمارا شروع ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں ہم قرآن پاک سے شروع کر لیں، قرآن پاک کو یعنی کہ مصحف سے شروع کر لیں گے، یعنی کہ سورہ بقرہ سے۔ تو اب جتنا ہم نے سیکھ لیا، دعائیں سیکھی جو سب کچھ ابھی ہم دیکھتے بھی ہیں سلائڈس پر، آپ سب نے اپنی اپنی ورک بک کمپلیٹ کرنی ہے، کمپلیٹ کر کے آپ بھیج دیجئے، سسٹر حفصہ کو بھیجیں یا مجھے بھیجیں، آپ کو نمبر دے دیا جائے گا کہ جس نمبر پہ آپ نے بھیجنی بھیج دی ہے تو الحمدللہ، نہیں بھیجی تو کمپلیٹ کیجیے۔ اپنے سارے ہوم ورکس اوپن کر کر کے دیکھیں، جہاں ویو سکور کی بجائے آپ کو بلینک آ رہا ہے ہوم ورک، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے وہ سبمٹ نہیں کیا، اسے سبمٹ کر لیجئے۔ اور بہت اچھی سی تیاری کے لیے آپ کے پاس ایک کارڈ ہے، اس کارڈ کو آپ نمازوں کے بعد دیکھیے، ویسے تو ہم شروع سے بتاتے ہیں کہ یہ روٹین بنائیے۔ اب آپ کے پاس یہ جو کچھ دن ہیں، جیسے آپ کا اگر وینسڈے کو ہو رہا ہے کوئز، تو آپ نے اب یہ ایک دو دن جو آپ اس کو بار بار دیکھیں، اس میں آپ کا پورا سلیبس ہے QC1 کا، اے پارٹ بھی اور گرامر پارٹ بھی، جو اہم چیزیں ہیں ساری اس کے اوپر ووکیبلری آپ کو دے دی گئی ہے۔ تو اب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے کوئکلی میوٹ اور ان میوٹ کرنا، جب میں آپ سے کچھ پوچھوں کوئکلی آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں، اور جب آپ آنسر کر دیں ہاتھ وہیں رکھیں، فوراً سے اس کو میوٹ کریں تاکہ آپ اگلی بات میری سن سکیں آسانی سے۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، میرے ساتھ آپ دہرائی کریں گے حصہ اول یعنی قرآن پارٹ کی۔ تو جو 20 لیسنز میں ہم نے پڑھا، ہم اعادہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ہم پڑھ چکے سب کچھ، ہم نے الحمدللہ کلاس میں پڑھ لیا، سیکھ لیا۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی اسائنمنٹس بھی بنا بنا کر بھیجی، اور سسٹر اقصیٰ نے جو آپ کو بڑی پیاری پیاری اسائنمنٹس دی تھی، آپ لوگوں نے سالو کی الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ورک بک کا جو کام جس کو بھی بھیجا ایکٹیویٹیز میں سے، ان کو اس کو سمجھا، اور جہاں آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ سے مجھ سے یا سسٹر حفصہ سے، سسٹر اقصیٰ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کورس کا تعارف ہے، قرآن سمجھنے کا آسان اور ترین طریقہ۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے دیکھا کہ ہم نے بڑی تیزی سے اور آسانی سے چیزیں سمجھ لی۔ اشاروں کی مدد سے الحمدللہ سے 20 گھنٹوں میں ہم نے قرآن مجید کے 50 الفاظ سیکھے، اور ہماری کلاسز بھی آپ کے سامنے تھی۔ یہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے چارٹ، اس پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کتنی ضروری، جیسے ہوم ورک آپ کے یہ بیٹی سے 15% آپ کے جو آپ کا رزلٹ بنے گا، جو آپ کا سرٹیفکیٹ بنے گا، وہ آپ کی ادھر
बेस बता दी गई है कि होमवर्क आपका 15% पे जाएगा, वर्कबुक कंप्लीट करना भी ज़रूरी है 15%, इसी तरह से मिड क्विज़, फाइनल क्विज़ और इसके बाद क्राइटेरिया दिया गया है सर्टिफिकेट का, कि ये किस-किस तरह से आपको सर्टिफिकेट दिए जाएँगे। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में और जब हमारा कोर्स शुरू था हम सीख चुके, समझ चुके। अब हम देख लेते हैं हमारे कुरान के मकासिद क्या, हमने 6 मकासिद की बात की। पहला क्या है कुरान समझना आसान हो जाए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह से अपने जो 20 घंटे दिए उसमें हमने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा भी और इस चीज़ को हमने एक तरह से प्रूफ भी किया और खुद हमने इस चीज़ को अवेल भी किया कि हमने 50% अल्फाज को समझना शुरू कर दिया। नमाज़ समझ में आ जाए हमारा जो कोर्स बेस करता है कि इवन ये ज़्यादातर नमाज़ के बल्कि मुकम्मल कहना चाहिए कि इसमें आपको तशहुद की दुआएँ, इसी तरह से रुकू, सुजूद की दुआएँ, अज़कार सब कुछ आपको अ, इस तरह से बता दिया गया कि उनके माना करने आ गए आपको। उसके अंदर जो वाहिद जमा थी उन चीज़ों को देख लिया और जो मेन पॉइंट थी, इसके बाद जो बाकी चीज़ें रह गई जो अभी हमें समझ नहीं आई या जिन अफ़्आल पे हम अभी नहीं गए, तो वो हमने कैसे जाना है आगे वो हमने कोर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंशाअल्लाह अपने कोर्स कंप्लीट करने हैं। तो हम बाकी जो चीज़ें जो तशनगी रह गई है उसको भी हम पूरा करेंगे। इसके बाद ये नमाज़ मुअस्सर हो जाए, जब नमाज़ समझ में आती है, तो नमाज़ पढ़ने का मज़ा भी आता है और नमाज़ का असर भी होता है हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे दिलों पर। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक, यानी कि कुरान को हमने कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, ये हमने सीखा। इसके साथ नेक अमाल यानी कि आला अखलाक की तरगीब, ये हम एक गोल सर्कल देखते थे कि गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ आप इस बात को समझिए। तो उसमें हम ये जो दुआ, प्लान, तबलीग, एहतिसाब वगैरह की बात करते थे, वो उसमें हमने समझा कि अब हमने आइंदा अपनी ज़िंदगी को कैसे गुज़ारना है। इसके साथ-साथ बोनस में हमने अरबी के बोलचाल के 100 जुमले बनाना सीखे। 100 तो हमने यहाँ से सीखे हैं, इससे मिलते-जुलते कोई फ़ेल आपके सामने आ जाता है नासरा जैसा, दौराबा जैसा, तो आप उसके मज़ीद जुमले बना सकते हैं इसी तरह से कि आपने हुआ का जवाब हुआ से देना, हुम का हुम से, अंता का अंता अना से, फिर अंतुम का नहनु से। ये इसी तरह से तरतीब रहती है, इसमें बदलना नहीं है। क्योंकि सामने वाले से जब बात की जाती है तो हम खुद उसका जवाब देते हैं। एक हो तो एक बंदा जवाब देता है, ज़्यादा लोगों से बात की जाए तो ज़्यादा लोग जवाब देते हैं। ये हमारा टोटल कोर्स था। सूरह फातिहा, सूरह असर, नसर, काफिरून, इखलास, फलक, नास आप इसको गिन लीजिए। इस सूरह फातिहा पहली सूरह है और आखिरी 6 सूरा। ये हमने कुरान मजीद का जो हमने QC 1 का जो कुरान पार्ट था उसमें हमने कवर किया है। इसके साथ अज़ान, दुआएँ हैं, वज़ू से पहले की, वज़ू के बाद की, रुकू और सुजूद के अज़कार हैं, इसी तरह से तशहुद और इसी तरह से दुरूद और इसके अलावा हमने जो दुआएँ सीखी, दुआओं के बाद हमने 1-2 अहादीस भी देखी देखी थी और कुरान के आयात के कुछ टुकड़े, पूरी-पूरी आयात नहीं थी, कुछ टुकड़े भी हमने अपनी क्लास में कवर किए थे। शुरू हमने किया था तअव्वुज़ से, लेकिन नमाज़ में हम सबसे पहले सना पढ़ते हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब आप ऐसा कीजिए कि अपने माइक्स अनम्यूट करके आपने फ़ौरन से आंसर करना है। जैसे मैं आपसे पूछती सुबहाना का, तो कितने टुकड़े करेंगे? 2। 2 अब आपने ये बताना है कि जैसे सुबहाना का के 2 टुकड़े हैं, जल्दी से साथ बता देना सुबहाना और का, ठीक हो क्या जी? इसी तरह से जी। अल्लाहुम्मा के बारे में हमने कहा कि ये एक लफ्ज़ है, इसके टुकड़े नहीं करने। अच्छा जी, व भी हमज़ी के टुकड़े कीजिएगा, मैं इसको इस तरह से गिनूँगी ताकि आपके टुकड़े बिल्कुल ठीक हो जाएँ। वाव, बी, हमदी, का। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी क्या? कि हमें पता चला ये 4 टुकड़े हैं। 4 टुकड़ों का क्या मतलब है? हर टुकड़े की अलग से बात की समझ आ रही है। वाव है तो इसका मतलब है और, बी है तो से, ठीक हो गया जी? हम्द, तारीफ़ और शुक्र, का, तेरी। अब इसको जब जोड़ते हैं तो रोमा तर्जमा बन जाता है और तारीफ़ है तेरे लिए। इसके बाद है वाव को अलग कर देंगे लेकिन तबारका को याद करने के लिए मुबारिक लफ्ज़ को ज़हन में रखें। जैसे हम मुबार और का से समझ नहीं सकते कि सामने वाले ने क्या बोला है। इसी तरह से इसको तबार और का कर देंगे तो बात की समझ नहीं आएगी। तबारका, तबारक, मुबारक 4-5 मरतबा इसको रिपीट कीजिएगा, ये याद हो जाएगा कि तबारका के टुकड़े नहीं करने।
کیونکہ یہ جو کا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس کا اپنا حصہ ہے. جیسے کسی کا نام ہو، اس کے نام کے جتنے الفاظ ہوں اس کا حصہ ہی رہیں گے. اس کے بعد ہے اسم اور کا 2 ٹکڑے کر لیں گے. وا اور تعالی 2 ٹکڑے. اسی طرح سے جد اور کا 2 ٹکڑے. اس کے بعد ہے و لا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود. الہ کا ورڈ ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے، ہمارے یہ بہت ساری چیزوں میں ہم پڑھیں گے لا الہ. اور الہ کے 3 معنی، یہ جو میں آپ کو بول رہی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. الہ کے 3 معنی. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود. اور معبود کون ہوتا ہے؟ جو محبت سے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، جس کی عبادت یا پرستش کی جائے اور جس کا ہر حکم مانا جائے. معبود کون ہے؟ 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی. جو ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے، جس کی عبادت کی جائے اور جس کا ہر حکم مانا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم نے الہ کو یہاں کور کیا. آگے جہاں جہاں الہ آئے گا پھر میں آپ سے پوچھ لوں گی کسی سے، تو آپ نے اس کے 3 معنی مجھے بتانے ہیں. اسی طرح سے آگے ہے غیر اور کا 2 ٹکڑے کر لیں گے. رواں ترجمہ ایک مرتبہ میں پڑھتی ہوں، دیکھ لیجیے. پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا. اب یہاں پر میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے کے بتایا کہ کس طرح سے ٹکڑے بنانے. اب آگے آپ نے بتاتے جانا ہے ٹکڑوں کے بارے میں. جہاں میں پوچھوں آپ نے اس کا معنی بتانا ہے، کیونکہ ہم نے اعادہ کرنا پوری کلاس کی طرح، ہم نے اس کو نہیں لے کے جانا. اب جیسے آپ کے سامنے یہ ایک پورا سورہ فاتحہ مکمل تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ آ گئی. یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ سے لے کے ولضالین تک ہم نے 12 عادات سیکھی تھی. ان عادات کو ہم نے الحمدللہ سے اپنی جب مڈ کوئز کے سے پہلے ریویژن کی، اس میں بھی بہت اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کیا تھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی بک پہ نشان لگائے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لگائے ہوئے تو آپ ایک ایک عادت کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں. آپ ایک پیج پہ چاہے لکھ لیں الحمدللہ پوری لکھ لیں، اعوذ باللہ سے شروع کریں، پہلے کے ساتھ پہلی عادت کو ساتھ اٹیچ کر لیں کہ آپ دیکھیں کہ کون سی عادت، پہلی عادت کون سی سیکھی تھی ہم نے، بتائیے گا. اعوذ باللہ سے تعوذ سے ہم نے کون سی عادت سیکھی تھی؟ شیطان سے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت. حفاظت. شیطان سے اللہ کی حفاظت میں آ جانا. اب آپ نے اسی طرح سے اس پہ 1 لکھ کے بسم اللہ پہ 2 پہ الرحمن رحیم، اسی طرح سے آپ نے ساری عادات ریلیٹ کر لینی، کیونکہ ہم یہ اب کسی سوری اب مڈ کوئز سے پہلے کر چکے. اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. یہ اس کے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ پورا ہم جیسے کہتے ہیں افعلو انصرو، یہ اسی طرح سے اعوذ ہے میں پناہ میں آتا ہوں، اپنی طرف اشارہ. میں پناہ میں آتا ہوں یعنی کہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ ہی کی پناہ چاہیے. باللہ کے 2 ٹکڑے کر لیں گے. من ہم نے سے پڑھا، الشیطان الرجیم. اگر میں آپ سے پوچھوں الشیطان الرجیم یہ دونوں کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یہ اسم ہے. اور پہچان کیا ہے اسم کی؟ اس میں الف لام ہے. ال لگا ہوا ہے. الف لام ہے. ال لگا، اس کو آپ الف لام نہ کہیں، اس کو ہاں جی ال لگا ہوا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی اور اسم 2 ٹکڑے کر لیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور پہچان میں آ رہے ہیں. اب اگر آپ کو کوئز میں کوشچن دیا جاتا ہے بی اللہ الرحمن الرحیم، آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے آپ آڈ 1 کی اس میں بنیاد پہ علیحدہ کریں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ بھی نام ہے، اگر اللہ کا آپشن بیچ میں ہے اسم جلالہ کا، اللہ الرحمن الرحیم، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ اسماء ہے. اسی طرح سے اسم جو ہوتا ہے نا، اسم وہ بھی ایک اسم ہے، نام ہے. اس میں صرف ایک جو ہے بی وہ ٹکڑا ہے، وہ الگ ہے، وہ کیا ہے؟ حرف ہے، وہ ہے. اب ہم کہیں گے کہ باقی سارے اسماء ہیں اور بی کو الگ کر دیا، یہ حرف ہے. اس طرح سے آپ نے اپنا آڈ 1 بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے. اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد کے 2 معنی پڑے تھے، جلدی جلدی سے بتاتے جائیں. تعریف تمام اور شکر. تعریفیں اور شکر. للہ کے ٹکڑے کیجئے.
لی دو ٹکڑے لی اور اللہ اور اللہ. اللہ. الحمدللہ. رب العالمین. اگر میں آپ سے پوچھوں عالمین کا واحد بتائیں. عالم. 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 عالم کو ایسے نہیں، اس کو زیر لگائیں، پیش لگائیں، زبر کچھ لگائیں اس کو. عالم. 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 ہاں اگر آپ اس کو ال نہیں لگاتے تو عالمین یا پھر عالمن. ٹھیک ہو گیا. العالمی یا العالمہ. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ یہ جو زیر زبر ساتھ لگاتے ہیں، آپ نے اپنی واحد اور جمع کو ایک جیسا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ال لگائے تو ال لگائیں، اور آپ نے آگے دیکھنا واو نون کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پیش یا دو پیش والا ہوتا تو پھر ہم اس کی واو نون والی جمع بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ اسی طرح سے ہے کہ ایک میں شدت پائی جا رہی، ایک میں تسلسل پایا جا رہا ہے. ان دونوں کا فرق ہے. اس کے بعد ہے مالک یوم الدین. یہاں سے ہم نے ایک اپنی اچھی عادت سیکھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دین کے دو معنی سیکھے تھے. جی بتائیے گا. اس میں تھا کہ اور آخرت نظام زندگی. کو نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. اچھا. اور دین کے دو معنی کیا ہیں؟ دین کا زندگی، نظام زندگی اور بدلہ. الحمدللہ. نظام. بدلہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی عادات کو یاد رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی یاد رکھنے. اس کے بعد ہے ایاکا. ہم نے یہ بات کی ایاکا کے ٹکڑے نہیں کرنے. ایاکا پورا ایک لفظ ہے. اس کے بعد ہے نعبد. اپنی طرف جو ہم اشارہ کرتے ہیں نفعل، اسی طرح سے نعبد ہم نے یہ آبادہ میں کیا بھی ہوا ہے. نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے. آگے ہے وہ ایاکا نستعین. وہ ایاکا با کو الگ کر لیں گے، ایاکا کو الگ کر لیں گے. نستعین یہ بھی نون کی وجہ سے ہمیں پتا چل رہا ہے، یہ فعل تو ہم نے نہیں پڑھا لیکن پتا چل رہا ہے یہ اپنی طرف کی بات ہو رہی. نستعین کہ ہم تیری ہی کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ اہدنا میم الصراط نون اور استعین. استعین. ٹھیک ہو نون گیا. الگ. نون الگ نہیں ہے، الگ نہیں کرنا. میں نے آپ سے کہا تھا نون ہمیں بتا رہا ہے نعبدو، نفعلو، ننصرو، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی طرف کا اشارہ ہے. یہ والا فعل ابھی ہم نے ایک ہی نہیں پڑھا نا، اس کو ہم آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اگلے کورسز میں پڑھیں گے. لیکن یہ کہ ابھی کے لیے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ نعبدو اور نستعین دونوں اپنی طرف والا. ہم جو اس کا ترجمہ بھی ہمیں بتاتا ہے نا کہ ہم اپنی طرف والی بات کریں، ہم چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے مطلب اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. ہاں ٹکڑے ہی نہیں کرنے. میڈم یہ فیل ہے نستعین. یہ فیل ہے. ٹھیک ہو گیا. فیل ہے لیکن ابھی آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں، ابھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ابھی اس کی ضرورت نہیں ہمیں اس کو کرنے کی. یہ ہوتے ہی افعال ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا سا جیسے اگلے اسٹیپ پہ سیکھنا، تو ہم ان کو صرف یہ کہہ کے آگے جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو پہچاننا ہے. کہ اگر آپ سے پوچھا جائے نستعینو اس کا معنی کیا، ترجمہ، اگر آپ اشارہ اپنی طرف کریں گے تو آپ کو ہم والا معنی آ جائے گا. اب آپ اپنی پہ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. اہدنا الصراط المستقیم. اس میں آپ نے اگر آپ سے پوچھا جائے قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے. اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم. اچھا جی. صراط ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے، الذین دوسرا، انعمت یہ ہم نے اپنی طرف والے اشارے سے سمجھ لینا ہے. علیہم کے دو ٹکڑے کر لیں گے. اس کے بعد ہے غیر. غیر اس غیری اور المغضوبی علیہم. علیہم ٹھیک ہے. مغضوب پورا ہے. اس کے بعد ہے ولضالین. مغضوب اور ضالین کا مجھے بتا دیجئے. یہ دونوں اسم ہے میڈم، اور مغضوب کا مطلب ہے غضب کیا گیا، اور دوسرا ہے کہ جو گمراہ ہوئے، الضالین کا مطلب. ان کا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ کو یہاں تک ساری سمجھ آ گئی کہ ہم نے کیا کیا کرنا. ہم نے ترجمے پکے کرنے ہیں، اپنے ٹکڑے پکے کرنے ہیں، اور یہاں پر ہم نے عادات. اب آپ نے مجھے تیزی سے جواب دیتے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جب ہم نے میڈ کوئز کی تھی، ریویژن کی تھی، اس میں نہیں ہم نے سارا سمجھ لیا تھا. اس میں سے جو ایک اہم چیز ہے وہ بس آپ مجھے بتا دیں. ان، انا اور ان اور انا ہم نے 4 طرح کے پڑھے تھے. ان کی معنی بتا دیجیے مجھے. ان مانے کے، انا بے شک. اننا مانے بے، آپ انما ان بس مانے صرف اگر. اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ کے اشہد ان لا الہ اور اشہد ان محمد رسول دونوں کے معنی کے ہیں. اس کے بعد ہے ان اور انا. ان اللہ مع الصابرین اور انشاء اللہ. آپ کو معنی فوراً ذہن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے کیا؟
दो के माना के हैं और एक है अगर और एक का बेशक, इनको आप अपने लिख लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अल्लाह अकबर 4 दफा, ये इसी तरह से अजान में हम सुनते हैं। अकबर किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा, ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा। अब अल्लाह ताला से कोई बड़ा नहीं है, हम कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अपनी तरफ इशारा, इसके बाद अन के ला इलाहा इल्ला, इलाहा के माना हमने सीख लिए। इसके बाद है इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा। ठीक हो गया। इसके बाद दोबारा से मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब इसको याद रखते हुए इसी तरह से हमने अशहदु अपनी तरफ इशारा, इसको समझना कि अशहदु अपनी तरफ वाला आऊज़ु की तरह है। इसके बाद है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, 2 मरतबा इस तरह से बोला जाता है। इसके बाद है हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ। हय्या अला और अस्सला, इसी तरह से हय्या अला और अलफला। अलफला के माना बता दीजिए मुझे। कामयाबी। कामयाबी। और अब पूरी आजान का खुलासा क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दावत का ऐलान कर दिया गया। अब आप आए नमाज की तरफ या ना आए, अल्लाह की बड़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फजर की नमाज में हम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ते हैं, यानी कि ये अजाफी कलमे 2 मरतबा बोला जाता है। इसमें आप देखिए कि अस्सलातु खैर नौम, इसमें हमें निशानियां नजर आ रही हैं, तीनों अस्मा है और मिन इसमें से हर्फ है। इस तरह से अगर आपको यही सवाल दे दिया जाए तो आप इजीली इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद कहा जाता है कद क़ामतिस सला, कद क्या है? हर्फ है। क़ामत, क़ामत उसी तरह से जैसे हमने कहा अबदत, नसरत, ठीक है, ये हमारा फेल है। इसके बाद है अस्सला, ये क्या है? नमाज। अब आपको इसी तरह से फ्रेज दे दी जाए तो आप अलग करेंगे, कद हर्फ है, क़ामत फेल है, अस्सला नमाज ये इसम है। ठीक हो क्या जी। इसके बाद वुजू से पहले हमने क्या पढ़ना है? बहुत छोटी सी दुआ बिस्मिल्लाह, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह कहिए। इसके बाद वजू कीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा हमने कवर कर लिया आजान में। वहदहू टुकड़े कीजिएगा, वहदहू 2 है, 2 टुकड़े। वाहिद और हु। ठीक हो गया जी। लहू के टुकड़े कीजिए, जल्दी जल्दी से। ला, मैडम लाम और हो, लहू, ठीक 2 हो गया, टुकड़े। 2 टुकड़े। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ये हमें नजर आ ही रहा है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। इसके बाद अब्द और हु 2 टुकड़े कर लेंगे। व रसूलुहु के टुकड़े कीजिएगा, 3 3 टुकड़े आ टुकड़े। जाएंगे, वाह वाव रसूल। अलग, रसूल अलग, हु अल्हम्दुलिल्लाह, अलग। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद है अल्लाहुम्मा, हमने जब इसको सीख लिया फेल अमर को तो हमें पता चला अल्लाहुम्मा एक ही टुकड़ा है, ए अल्लाह। इसके बाद है इज अल नी, बना दे मुझे, 2 टुकड़े कर लेंगे। मिनत तव्वाबीना, मिन हर्फ है, अत तव्वाबीना अल बता रहा है कि ये इसम है। और निशानी एक और पता चल रही है यानून, यानी कि इससे हमें ये समझ आ रही है कि इसका जो वाहिद बनेगा या तो वो तव्वाबन बनेगा या वो तव्वाबिन बनेगा, अत्तवाबी या अत्तवाबा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर वज अलनी के टुकड़े करने हैं तो यहाँ पर एक टुकड़ा बढ़ जाता है, व इज अल और नी, नहीं, बा हर्फ, जअल, इज अल जो है ये बन जाएगा हमारा फेल, और नी उसके बाद अपनी तरफ वाली जमीर। यहाँ पर यहाँ पर हर फेल और इसम तीनों चीजें आ गई। ठीक हो गया जी। मिनल मुतत्तहिरीन, ये भी इसी तरह से मिनत तव्वाबीन की तरह है। मिन हर्फ है, अर मुतत्तहिरीन, ये हमारा जमा का इसम आ गया मुतत्तहिर से। इसके बाद है सुभाना रब्बियल अज़ीम में 4 बातें हमने सीखी और बहुत अच्छे से हमने इसको रिवाइज भी किया हुआ है। पाकी, रबूबियत, अपनायत, अजमत, इसको भूलना नहीं है। ठीक हो गया जी। समी अल्लाहु, ये वही फेल है, समी अल्लाहु पेश बता रही है कि अब यहाँ पर हम इसको जोड़ लें, क्योंकि हमने कहा है जईदन में जब जबर आ जाए, फेल के बाद जईदन पे जबर आ गई थी तो वो ऑब्जेक्ट बन गया था। यहाँ पर ये हमारा साथ जुड़ गया सॉरी, ये बन गया सुन ली अल्लाह ने, ली और मन के टुकड़े कीजिएगा। उसकी, हम कहते हैं ना ली लिए, उसकी मन कौन, और जो हमने 2 माना पढ़े हुए हैं, उसकी जिसने हमीदा हु तारीफ की उसकी। इसके बाद है रब्बाना, रब्बाना में हमें फर्क देख लिया हुआ है कि अगर पेश के साथ रब्बू ना हो तो हमारे रब, और अगर जबर हो तो इसमें दुआ आ जाती। जितनी भी दुआएं हम पढ़ते हैं हम रब्बाना से शुरू करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। फौरन अपने जहन में अपने उठे हुए हाथ लेके आए और समझे कि ये मैं दुआ कर रही हूँ या हम सब दुआ कर रहे हैं, ए हमारे रब।
वा, ला और का, ये हमारे 3 टुकड़े हो गए। और अलहम्द, जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह में सीखा 2 माना, ये जहां जहां आपको नजर आए आपने उसी तरह से याद रखना है। इसके बाद है मिल आ, एक लफ्ज को याद रखें, मिल आ, भरने के बराबर। अब किस चीज को भरने के बराबर? समावात और दो चीजें हो गई। फिर अगली कौन सी चीज है जो इन दोनों के दरमियान में है? हुआ, हुमा, हुम। जब दो हो तो हुमा। तस्निया का यानी कि जो डुअल का एक ही सीगा हमने यहाँ पर QC1 में सीखना है, वो है बैना हुमा। इसको याद रखिएगा कि ये दो के बारे में, यानी कि आसमानों और जमीन की बात हो रही। इसके बाद है वह मिल आ, वा मिल आ। ठीक होगा, जहां वाह आए उसको उस तरह से अलग करना। माँ, जो कुछ भी 3 माना पड़े हुए माँ के, क्या, जो, नहीं, तो यहाँ पर जो वाला माना आ गया। शिता, फअलता, ये उसी तरह से सामने वाला अंता की तरह फेल है। तू चाहे, मिन से शई इन, कोई भी चीज, किसी भी चीज में बाद हम उर्दू में भी यूज करते हैं। ठीक हो क्या जी? अब हमने सजदे में 4 बातें सीखी, सुबहाना से पाकी, रबूबियत, अपनायत और बुलंदी। ठीक हो गया जी? कि रुकू में थी अजमत और यहाँ पर है बुलंदी। इसके बाद है अत्तहियातु। अत्तहियातु अलिफ ता वाली जमा है अत्तहिया की। ठीक हो गया? इसके बाद है लिल्लाही, 2 टुकड़े कर लेंगे। इसके बाद वस्सलात के 2 टुकड़े कर लेंगे, वाव और अस्सलात। वत्तय्यिबात, अत्तहिया, अस्सला और अत्तय्यिबा। ठीक हो गया जी? वाहिद की ये जमा गोल ता वाली वो वाहिद है। अब यहाँ पर हमने 3 बातों का ख्याल रखना। अल्लाह ताला के लिए कौन सी 3 इबादतें हैं? कौली इबादतें, बदनी कौली, इबादतें बदनी और और फिर माली। माली। माली, इन लफ्जों को याद रखना है, कौली, बदनी, माली, कौली, बदनी, माली। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 बातें बताइएगा। रहमत, बरकत, तरतीब सलाम। से आना है, तरतीब से आना। अस्सलामु अलैका, सलाम, सलामती, सलाम, और रहमतुल्लाह, रहमत, सलामती, रहमत बरकत। और बरकत। ठीक हो गया जी? सलामती, रहमतें, बरकतें। अलई का उसी तरह से टेबल में से आ गया, अला वाले टेबल में से। अब आपको यहाँ पर ऐसे ट्रिकी से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए भी जा सकते हैं। आपको बताया जा रहा है वाह, रहमतु और अल्लाह टुकड़े करने, तो आपने सब चीजों को अलग कर लेना है। अगर मैं आपसे पूछूं वह बरकातुहू, इसके टुकड़े कीजिए। वाओ, वाह, बरकत हो। बारका और हाफिज हूँ अलग से। हूँ जमीर वाला आ गया। ठीक हो गया? इशारे किया करें फिर बहुत अच्छा लहदा हो जाता है। इसके बाद बात की गई कि हम पर सलामती हो। वाला इबाद, इबाद की मुझे वाहिद बता दी। आबिद, अबद, अब, अबद। अब, ठीक हो गया? अब्द, आबिद है, आबिद हमने फेल पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा इस्मुल फाइल है, इबादत करने वाला। अस्वालिहीन, इसकी वाहिद हो जाएगी या तो जेर के साथ या हो जाएगी जबर के साथ। ये हम सारा कवर कर चुके अब जी। ठीक हो गया? ये हमने सारा पढ़ लिया। अब्द, ये आ गई, उसकी वाहिद भी आ गई। अब्द ऐसे लिखा जाएगा, अब्द हु, अब्द हु, ये 2 टुकड़े। जो अब्द लिखा हुआ है ना, इसको आप अब्दुन या अल अब्द भी कह सकते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी कि ये एक इस्म है। ठीक हो गया जी? यहाँ पर दुरूद है, अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं करने। स्वल्ली, हमने कहा स्वल्ली, रहमत भेज, ये उसी तरह से अमर है, रहमत भेज। स्वल्ली से उसी तरह से फेल माजी पे आ जाए तो आ जाता है सल्लैता, सल्लैता, जैसे तूने, कमा को जैसे, और तूने रहमत भेजी। ठीक है? इसको ऐसे रिलेट कर ले, स्वल्ली फेल अमर, स्वल्लैता ये हो गया सामने की तरफ हमने इशारा किया, भेजी रहमत तूने। यानी कि ए अल्लाह रहमत भेज। फेल अमर में क्या होता है? इसमें दरख्वास्त या दुआ। ठीक है? या फिर हुक्म होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये दुआ है। अला पर, अब स्वल्ली, अला से रहमत भेज, स्वल्ली ली से बन जाता है नमाज पढ़। ये जो हरफे जारा का हमने फर्क सीखा था कि हरफे जर बदलने से माना बदलते हैं। बाकी आल के मुझे 2 माना बताइएगा। आल, खानदान और इत्तबा करने वाले। एतबा करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। कमा के टुकड़े ना कीजिएगा। इसी तरह से अला का माना हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इब्राहिम व अला आली इब्राहिम, इसी तरह से आ जाएगा। इन्ना का ये पूरा टेबल भी बना के देख सकते हैं, इन्नाहु, इन्नाहुम वगैरह। हमीदुन, तारीफ के काबिल, ये हमद की तरह है, अलहम्द की तरह। ठीक हो गया?
थोड़ा सा इसका लिखने का अंदाज बदला, थोड़ा सा इसका तर्जुमा बदल गया। तारीफ के काबिल, मजीद जैसे हमने कहा जद, उसी तरह से जद्दू का में हमने जो बुजुर्गी वाला माना देखा था वही इसमें अप्लाई हो जाएगा। सेम वही अल्फाज हैं, दो फर्क हैं, एक फेल अमर बारिक बदल गया और इसी तरह से बार रखता, ए अल्लाह बरकत अता फरमा, कमा बारकता, जैसे तूने बरकत अता फरमाई। अब इसमें हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये सारा हमने मिड में रिवीजन में क्लासेस में सीख लिया था कि ये सारी दुआ के पीछे जो इसकी वजह थी वो क्या थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ मांगी जा रही है कि जैसी बरकत और रहमत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली वही अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया के तमाम मज़ाहिब ज्यादातर मानते हैं कि वो अल्लाह ताला के नबी हैं। यह आ गया हमारा रब्बाना, रब्बुना और रब्बाना का फर्क हमने सीख लिया। अब हम यहाँ पर थोड़े टुकड़े देख लेते हैं। आती और ना, आती ना, दे हमें, पी और अद दुनिया, ठीक हो क्या जी, दो टुकड़े बन गए। हसना और इसके बाद वाफी, अल आखिरा हसना। अब वाकिना के कितने टुकड़े करने, ये जो मैं आपको थोड़े अहम करवा रही हूँ, इनको जरा बार बार गौर भी कीजिएगा जब आप खुद तैयारी करेंगे। वा, पी और ना। इसके बाद इस पूरी दुआ को देखें तो इसमें दुनिया, हसना, आखिरा और अन्नार, ये चारों मुअन्नस है। अजाब को हम उर्दू में भी मुजक्कर बोलते हैं, ये अरबी में भी मुजक्कर है। इसका आसान तरीका ये आप इसको ऐसे याद रख ले। इसके बाद है अल्लाहुम्मा, वही वर्ड है, टुकड़े नहीं करने। बार बार मैं इसलिए बता रही ताकि आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि अल्लाहुम्मा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला पुकार के लिए हम ये कहते हैं अल्लाहुम्मा, इसके टुकड़े नहीं किए जाते। आइन्नी, आइन्नी, आइन और ये जो या अपनी तरफ वाली नी, रब्बी जिदनी की तरह। आइन्नी दो टुकड़े कर लेंगे, मेरी मदद फरमा, अला पर, जिक्री का, व शुक्री का, व हुस्नी इबादती। जो जो आपको तर्जमे में भी अलहदा हो रहे लफ्ज पता चल रहे हैं वो उसी तरह से हमने टुकड़े बना लेने हैं। ठीक हो गया जी। जिक्र करने पर, तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। इसके बाद हम सूरह इखलास पे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद के दो माना बता दीजिए। वाहिद, यकता। हो गया जी। इसके बाद है अल्लाहु समद, इसमें हमने दो चीजें सीखी, बताइएगा। अल्लाह ताला बेनियाज है और वो हर नुक्स से पाक है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, इसमें हमने ये बात याद रखनी है, हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है, किसी इसको का आपने मोहताज नहीं इन जी। चीजों को याद रखना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है लम यलिद व लम यूलद, फर्क हमने देख लिया कि लम यलिद और इसी तरह से व लम यूलद, इसको हमने थोड़ा सा ये देखा था कि ये मजहूल आ गया था। इसको बहुत ज्यादा अभी हमने इस परेशानी में नहीं जाना कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। बस इतना याद रखना, लम यलिद उसने किसी को पैदा नहीं किया, हुआ लम यूलद, इस तर्जमे से हमने फोकस करना कि ये पैसिव वॉइस में चला गया कि ना ही उसको पैदा किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क इसमें हमने याद रख लेना है। इसके बाद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफुफ हमने सीखा था कि जैसे हम शादी करते हैं तो कुफुफ, लड़की का कुफुफ खानदान एक जैसा, उसको अब ये बराबरी या उसका कोई हमसर, इससे याद कर लें कि उसका कोई, उसकी कोई बराबरी हमसरी करने वाला नहीं है। ठीक हो गया जी। लम का भी हमने सीखा ही था कि ये जो है चार तरह के अल्फाज होते हैं जो नहीं के मानों में यूज हो जाते हैं, मा, ला, लम और इसके बाद लन। ठीक हो गया जी। ये हम क्योंकि करके आए इसलिए फिर इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। खुलासा क्या होगा, अल्लाह ताला जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में अकेला है। कैसे अकेला, ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा। जात, सिफात, हुकूक, इख्तियारात। और इसी तरह से एक अहम चीज जो मुझे सूरह फातिहा में आपको बतानी थी कि उसमें वो जो हमने कहा था ना कि अंबिया, सिद्दीकीन, स्वालिहीन और सॉरी, अंबिया, सिद्दीकीन, स्वालिहीन, शोहदा और स्वालिहीन, स्वालिहीन एंड पे आएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा गड़बड़ कर देती। इसको आप एक दफा बुक में देख के इसको तरतीब को भी आपने याद रखना है। ठीक है, वो एक अहम उसमें चीज थी जिसको मैंने मिस कर दिया, आपने मिस नहीं करना। इसके बाद हम सूरह फलक पर आ जाते हैं। कुल आऊज़ु बी रब्बिल फलक, बी और रब्बी, कुल का हमने देख लिया। कुल कि कह दीजिए, आऊज़ु हम पढ़ चुके हैं, मैं पनाह में आता हूँ। बी और रब्बी दो टुकड़े करके अल फलक का माना बता दीजिए मुझे। सुबह का रब, बकरा, सुबह का है।
सुबह के रब से, मिन शर्री मा खलक, जो भी कुछ उसने पैदा किया। अब ये जो पैदा किए, यहाँ पर 3 शुरूर की बात हो रही है और एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त है। कौन सी सिफ्त बताई गई है? सुबह का रब, सुबह का रब। और 3 शुरूर कौन कौन से हैं? अंधेरा ठीक हो गया? और हसद करने वाले, नहीं, आप तरतीब में लेके और आएंगे। नहीं देखिए, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब से हमने देख लिया अंधेरा। अंधेरा, हाँ जी, इसके बाद अंधेरा और नफसात, फूंक मारने वालियां ठीक और है, हसद करने वालियां। ठीक है, और हसद करने वाला। तो ऐसे तरतीब में याद करेंगे ना, क्योंकि ये सूरतें हमें याद हैं। जब ये जुबानी याद है तो इनसे हम आसानी से अपने असबाक निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी? यहाँ पर क्या है? 3 शुरूर और अल्लाह की एक सिफत। अच्छा जी, टुकड़े इसमें सब कुछ अलग-अलग, आप खुद इजीली इसके टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है? आप बल्कि इसको असाइनमेंट के तौर पे लेके आप इसके ये जो पूरी सूरह इसके टुकड़े मुझे ग्रुप में बना के सेंड कीजिएगा। मैम इसके बाद मुझे ना टुकड़े बनाना बहुत मुश्किल अच्छा, लगता है, चले पता नहीं क्यों। चले देख लेते हैं। कुल एक लफ्ज से, आऊजू दूसरा, इसके बाद बी और रब्बी, यहाँ टुकड़े होंगे। अल फलक कोई टुकड़े नहीं है, मिन एक ही है, शर्री एक ही है, माँ एक है, खलक एक है। ठीक है जी? इस तरह से आप समझ भी ले। वा अलग है, मिन अलग है, शर्री अलग है, गौसिकिन अलग है, इजा अलग है, वकब अलग। इसके कहीं भी कोई टुकड़े नहीं हुए। वा अलग है, मिन अलग, शर्री अलग, अन्नफासाती अलग, फी और अल उक़द। ये अगर फिल उक़द इकट्ठा दे दिया जाए तो फी को अलग कर लेंगे, उक़द को अलहदा कर लेंगे, क्योंकि जुड़ा हुआ है। इसके बाद वा और मिन लिखे भी अलहदा है, वैसे भी अलहदा है। शर्री अलग है, हासिद अलग, इजा अलग और हसद अलग। इसमें ज्यादा टुकड़े है ही नहीं, सिर्फ 2 टुकड़े आए हैं, एक बी रब्बी और एक फिल उक़द। ठीक हो गया जी? खुलासे याद रखने, इसको आपने खास तौर पे इन चीजों को फोकस करना। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। इसके बाद है बिलखुसूस अंधेरा, जादू, हसद। ठीक हो गया जी? इसके बाद है कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास। यहाँ पर अल्लाह ताला की 3 सिफात है। कौन कौन सी? जल्दी से बताइएगा। लोगों का रब, लोगों का मालिक, लोगों का माबूद। लोगों का मालिक नहीं कहना, मालिक ही यौमिद्दीन में मालिक कहा था, यहाँ मलिक। मलिक का माना याद रखें बादशाह, और इसको एक छोटी सी टिप के तौर पे बादशाह, अपने ज़हन में लाएं। बादशाह की क्या होती है? बादशाह के साथ जो उसकी फीमेल है, तो उसको क्या कहते हैं? राया कहते हैं, नहीं, बादशाह की जो मुअन्नस होती है क्या होती है वो? मलका। मलका। मलिका, उससे याद रखें, मलिक बादशाह और मलिका इसकी बीवी है। ठीक है? आपने याद रखना, मलिक का माना बादशाह है। इसके बाद इलाहा, लोगों का माबूद। ठीक है? सिर्फ आपने इसको टिप के तौर पे याद रखना है। ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं बोल रही आपने उसको अगर आपको वैसे याद है मलिक का बादशाह तो वो भी ठीक है। इसके बाद है मिन। अब ये जो सिस्टर कह रही थी टुकड़ों का देख लीजिए, मिन। इसके बाद है शर्रिल वसवास। अब ये जो जुड़ा हुआ था ना, इसको अलग करना होता है। शर को अलग कर लें, वसवास को अलग कर लें। मिन से शर्री शर, और वसवास, वसवास यानी कि अलग से बन गया। इसके बाद खन्नास। ठीक हो गया जी? उसके बाद है अल्लाह जी यू वसविसु। अल्लाह जी को अलग कर ले, यू वसविसु पूरा इकट्ठा एक वर्ड है। फी, इसके बाद सुदूरिन नास। यहाँ पर पूरे में एक शर है, वो कौन सा है? सूरह शैतान जो छुप के छुप छुप फंसा कर करता हमला है। करने वालों के। हाँ जी, कौन सी शर से पनाह मांगी है? छुप छुप कर हमला। उसके बाद तो बाकी बातें बताई गई ना कि उनकी वजह से होता क्या है। इसके बाद है मिनल जिन्नती वन नास। ये सारे उसके साथ जोड़ के बताए। शर कौन सा है? शर है कि जो छुप छुप कर हमला करते हैं। वो छुप कर अपना काम कर देते हैं, उसके बाद इंसान बाकी काम खुद ही कर लेता है। इसके बाद है ये क्या है? ये तमाम शुरू से बचने का फार्मूला है, बिलखुसूस वसवसों के शर से। इसके बाद हमने किया वल अस्र, यानी कि अब हमने यहाँ देखा कि वाव का एक और माना आ गया, कसम है वल अल असर जमाने की। इसके बाद इन्ना का हम माना सीख चुके, बेशक इन अल इंसाना, इंसान इसकी आपने बता देनी है जमा, वो क्या होगी? अन्नास। इसके बाद है ला और फी, 2 टुकड़े कर लें। खुस्र नुकसान, इल्ला सिवाय, अल्लाजीना वो जो लोग, इसकी वाहिद है अल्लाजी। ठीक हो गया? ये छोटी छोटी हमें चीजें साथ साथ याद करनी है। आमानु जो ईमान लाए, वा और आमिलू और अमल किए। ठीक है? आपने ये इस तरह से इशारे करने, आमानू आमिलू अस्वालिहात। स्वालिहा नाम भी होता है ना बच्चियों का, गोल ताक के साथ, ही उसकी जमा है। इसके बाद है वा तवासौ, एक दूसरे में। इसके बाद है बी और अल हक। इसके बाद है वा
तवासौ, ठीक है, तवासौ पूरा एक फेल है। इसके बाद है बी और अस्सब्र। यहाँ पर कौन सी बात है कि अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान खसारे में सिवाय किसके, वो जो ईमान लाए, जिन्होंने सवाले अमल किए, और इतना काफी नहीं है। इसके बाद है कि एक दूसरे को भी हक की तलकीन की और सब्र की, यानी कि मुआशरे में कैसे रहना है, एक दूसरे को भी बचाना है। इसके बाद ये क्या है, ये मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला है। इसके बाद हमने सूरह नस्र की थी। इजा जा, क्या बात याद रखनी, इजा ने माजी का माना हाल या मुस्तकबिल में कर दिया कि जब आ जाए नस्र। नस्र क्या है, ये हमने नौसरा के टेबल में से जो मस्तर किया था, नस्र अल्लाह की, यानी कि मदद अल्लाह की और फतह। इसके बाद है वारा आईता, मैम ये जरा दोबारा बताइएगा, मैम ये दोबारा बताइएगा। इजा जब इजा जब माजी से पहले आए तो माजी के माना को मुदारे में ले जाता है, ये लिख लें आप। वैसे था इजा जा के में जब माना इसका निकालें वो आया, अब है जब आ जाए, ठीक है, यानी कि अब ये मुस्तकबिल की बात हो गई या ये हाल की बात हो, क्योंकि जब अल्लाह ताला की मदद आ गई है, मिल गई है, तो उसके बाद क्या हुआ है, फतह नसीब हुई। ये हमने देखा था ना कि कैसे ये फतह नसीब हुई थी, इन सारे काफिरीन पर ये मुसलमानों का गलबा हो गया था। उसके बाद ये हुआ था कि फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल होने लग गए थे। राईता अंता फालता की तरह, और देखा आपने अन्नास लोग यदखुलूना, पूरे फेल पे जाने की जरूरत नहीं होती, बस यदखुलूना हमने देखा कि या से शुरू हो रहा है, नून पे खत्म हो रहा है, तो ये हमें थोड़ा मुदारे जैसा लग रहा है, दाखिल हो रहे हैं दी में दीन इल्लाही, अल्लाह के दीन में, अफवाज, फौज की जमा अफवाज। आगे है फा को अलग कर लीजिए, सब्बिह को अलग कर लीजिए, बी को अलग करें, हमदी को अलग करें, इसी तरह रब्बी को अलग कर लें, का को अलग कर लें, वा अलग कर लें। इसके बाद इस्तगफिर, इसको अलग करके हु कर लें। अब इतने छोटे से फ्रेज में फा, सब्बिह, बी, हमदी, रब्बी, का, वा, इस्तगफिर और हु, कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टुकड़े बन गए। आप ये सारा इसी तरह से हाईलाइट करके इसके ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख ले, इंशाल्लाह ये आपको कभी नहीं भूलेगा। इन्ना हु, इन्ना और हु जुड़ा हुआ है, 2 टुकड़े। काना हमने देखा कि जब बाकी लोगों के लिए हो तो था का माना आएगा, जब अल्लाह ताला के लिए हो तो इसको हम कहेंगे कि है, बेशक है अल्लाह क्या है, तवाब, बार बार तौबा कबूल करने वाला। अच्छा जी, सूरह नस्र के बारे में ये हम पढ़ के आ गए हैं, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते। ये आप देख लें, 4 बातें कौन सी है। कामयाबी और फतह कहाँ से मिलती है, अल्लाह ताला की मदद से। कामयाबी का मतलब लोगों को इस्लाम में दाखिल होना है, यानी कि कामयाबी ये थी कि लोग मुसलमान हो और मुसलमान रहे। जब कामयाबी हासिल हो जाए तो फिर क्या करना, अल्लाह की तस्बीह करनी है, हम्द करनी है, इस्तगफार करना है। इसके बाद अल्लाह ताला की जात बार बार माफ करने वाली, गलती हो जाए, गलतियां करनी नहीं है, हो जाए तो अल्लाह से माफी मांगनी है। इसके बाद है कुल या अय्युहल काफिरून, यानी कि गैज़, गज़ब, गुस्से का इजहार है। कुल या अय्युहन नास नहीं कहा, कुल या अय्युहल काफिरून कहा गया, खिताब किया गया काफिरों से। इसके बाद आपने पूरा वो जो आबादा का टेबल है उसको आपने फिट कर करके देखना। आबुदू, मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना, तुम सब इबादत करते हो, आबिदूना, इबादत करने वाले, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। इसके बाद है मा अबद तुम, ये आप सामने जो माजी का सीगा ले आए। इसके बाद आबिदूना दोबारा से वही आ जाएगा। अब आपने पूरा वो जो अपना टेबल है उसके साथ करके लिख लें आबिदुन, ये भी इस्मुल फाइल, साथ साथ लिख लें कि ये क्या क्या बन रहा है। यहाँ पर जो है ला कुम 2 टुकड़े, ठीक है, लकुम, ला कुम 2 टुकड़े, दीनु कुम फिर 2 टुकड़े। इसके बाद वा ली या, वा ली या 3 टुकड़े करेंगे, और दीनी, दीनी के एंड पर जो जेर है इसके अंदर एक छोटी सी या अपने वाली छुपी है, तो हम क्या कहेंगे, दीनी प्लस या। अगर आपको लिखा हुआ मिले ला प्लस कुम प्लस दीन प्लस कुम प्लस वा प्लस ला प्लस ये, इसके बाद प्लस दीन के आगे फिर प्लस लग के या लिखा हो, तो आपने वो वाला ऑप्शन चूज करना, क्योंकि इसमें अपनी तरफ वाली दीनी, जैसे हमने कहा था रब्बी, ये छुपी हुई है। ये कुरान पाक का उस्लूब है कि लिखा ऐसे जाता है। अब यहाँ पर जो खुलासा याद रखना, दीन इस्लाम के मामला में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं। वो क्या था, वो चाहते थे कि 1 साल मुसलमान उनके अल्लाह की इबादत करें और 1 साल मुसलमान इबादत करें जो उनके बुत वगैरह थे, ठीक हो क्या, इस पे तो मुसालियत हो ही नहीं सकती थी।
यहाँ पर हमने सीखा किताबुन, किताबुन हमें पता चल गया ये एक इसम है तनवीन की वजह से। इसके बाद है अनजलना, सॉरी अनजलना, ये हमने अपनी तरफ वाला इशारा किया। अनजलना नाजिल किया, किसको नाजिल किया? हमने नाजिल किया हु उसे, किसको? किताब को। टुकड़े बनाने हो तो अनजलना और हु, जैसे फ़अलना के साथ हम आगे हु वाली ज़मीर जोड़ दें। इसके बाद इलैका के 2 टुकड़े करेंगे। मुबारक, एक लफ्ज़ मुबारक, ठीक है? बरकत वाली है। ली यदब्बरू, ली का हमने कहा था, यहाँ पर हमने इसका माना जो करना है ताके वाला करना है। इसके बाद है आयाती और ही, आयात ही, ये किसकी? किताब यानी कि कुरान पाक की आयात। इसके बाद वा और ली को अलग कर लें। यतज़क्करा है कोई जो इसमें से इसमें है कि ताकि वो नसीहत हासिल करें और ताकि वो उसको याद करें, जिक्र करें, ठीक हो क्या? उलू, उलू हमने कहा था कि उलुल अलबाब, अकल वाले। तो अलबाब की लुब अलबाब, और ये मुज़क्कर है, इसको भी हमने याद रखना है। ठीक हो गया जी? ये कुरान पाक के बारे में बताया गया कि ये वो किताब है जिसको मुबारक है, नाज़िल किस लिए की गई? ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें, इस पर तदब्बुर करें। ये ली यदब्बरू यानी कि इस पर गौर व फ़िक्र करें। ली यतज़क्कर, जैसे हमने ज़िक्र वाला वो ज़ाकरा टेबल किया था ना, उसको याद करना, समझना, उसमें से नसीहत हासिल करना, ये वही वाला माना आ जाएगा। इसमें हमने कुरान पाक से सबक कैसे लेना है? रास्त यानी कि डायरेक्ट कुरान पाक को पढ़ के उसमें से हमने जो अल्लाह ताला के अहकाम है उनको पे हमने अमल करना, जिससे मना किया गया उससे मना होना। शख्सी कि मैं खुद देखूं मेरे लिए कौन सी आयत है, आज मुझे ये आयत दिखाई गई, इसका क्या मकसद हो सकता है, उस पे हमने सोचना है। इसके बाद कुछ चीजें जो तयशुदा, जैसे हम कहते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा, कुछ चीजों को हमने मुतालिक यानी कि रेलिवेंट करना है। और इसमें ये होता है कि आपने इन चारों चीज़ों को इसी तरह से तरतीब से याद कर लेना है। इसकी छोटी-छोटी शरह जो आपके पास बुक में है, उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए ताकि ये और अच्छी तरह से ज़हन में आ जाए। आपको रास्त, शख़्सी, तयशुदा, मुतल्लिक इन अल्फ़ाज़ को पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो आप डायरेक्ट, पर्सनल, प्लान्ड, रेलेवेंट, इससे आप जो इसमें से सबक समझना चाहती हैं, इनको याद कर लीजिए। लेकिन आपको उर्दू में भी याद होनी चाहिए। कुरान से हमारा ताल्लुक कैसा है? रास्त, शख़्सी, तयशुदा, मुतअल्लिक। ठीक हो गया जी? ये अहम चीज़ें, इनको नोट करते जाएँ। अच्छा जी, एक आदमी के लिए तदब्बुर कैसे वो कर सकता है? वो पढ़ के कर सकता है, मुतालिया करे जैसे हम पढ़ते हैं सबक। उसके बाद तसव्वुर, गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ कि हमने क्या कर चुके, क्या करना चाहिए था और क्या करना है आगे। दुआ कीजिए कि हर अमल की इब्तिदा दुआ से होती है। उठते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया जी? खाना-पीना बिस्मिल्लाह है, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी दुआएँ, 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 दुआएँ। शुरू कहाँ से होता है? हर अमल दुआ से, सबसे पहले बिस्मिल्लाह ही एक दुआ है। आऊज़ु बिल्लाह भी एक दुआ है। इसी तरह एहतिसाब करते रहना, प्लान बनाते रहना है और कुरान के हुकूक याद रखने, जो हम एंड पर कहते हैं कुरान पाक को पढ़ना, समझना, ये सारी चीज़ें हमने याद कर लेनी। ये क्या है? कुरान के हुकूक हैं। ईमान रखना, पढ़ना, समझना, तदब्बर करना, अमल करना और फैलाना। ठीक हो गया जी? इसके बाद हमने पढ़ा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। ठीक हो गया जी? और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया। ये एक-एक जैसे लिखा हुआ ना, इसके आपने कोई टुकड़े-शुकड़े नहीं करने। वा, ला और कद ये नज़र आ रही है अलग-अलग। वा, ला और कद। ठीक हो गया जी? अब ये जो यस्सर ना है ना, अब यस्सर करके ना आप इसको अलग पढ़ नहीं सकते, ठीक है? ये फ़ालना की तरह है। क्योंकि यस्सर पढ़ेंगे तो आपको इसका माना समझ नहीं आएगा कि यस्सर अलहदा क्या है। ठीक हो गया? इसको हमने इसी तरह से बहुत डिटेल में नहीं जाना। यस्सर ना हमने आसान किया, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। अल कुरआना, कुरान को ली और ज़िक्र, ये ज़िक्र जो वो हमने ज़ाकरा वाला टेबल किया था, उसमें से ज़िक्र मस्दर आ गया, ठीक हो गया जी? इसके बाद है खैरु, खैर को अलग करें, कुम को अलग करें, बेहतर है तुम में से, मन जो, यहाँ पर वो जो वाला माना आ गया, कौन वाला नहीं आया। तअल्लमल कुरआना, कुरआन को सीखे, वा अल्लमा और हु, ठीक हो गया? ये हमने कर लिया कि ये है तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए उसको। एक्सक्यूज़ मी। जी। अब ये है कि तुम में से बेहतर वो है, यहीं से हमारा कोर्स शुरू हुआ था। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि तअल्लमा क्या है? खुद सीखना। अगर आपको मानों में थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाए, तअल्लम, इसमें एक लफ्ज़ भी ज़्यादा है, इसमें मेहनत भी ज़्यादा, खुद सीखने में, ठीक हो क्या जी?
اور अल्लामा दूसरों को सिखाना, कि सीख लेना काफी नहीं है, हदीस के दोनों पहलुओं पर, दोनों चीजों पर हमने अमल करना है। फिर हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएंगे कि जो कुरान को सीखने वाले भी हैं और सिखाने वाले भी हैं। अच्छा जी, तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए? बार बार दुआएं कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआएं कीजिए, अपने सारे वसाइल का इस्तेमाल कीजिए। आपके पास पेन है, पेंसिल है, बुक है, आपके पास वीडियोस हैं, स्लाइड्स हैं, इसके साथ साथ आपके पास सोशल मीडिया पर बहुत कुछ मौजूद है। तो रहना आपने अपने फोकस इसी पे है, जो हमारा क्यूसी का जो जितना है। जी सिस्टर नाजिश कुछ कहना है आपको? जी मैंने मुसाबकत के बारे में पूछना था। मुसाबकत, एक दूसरे से आगे बढ़ना नेकी के कामों में। जैसे हम कहें कि हमें कोई मौका मिल रहा है नेकी करने का, कुछ भी है, इसमें किसी की मदद है या किसी भूखे को खाना खिलाना है, या हमने ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने कोशिश करना, हमने आगे बढ़ना है। तो ये जो नेकी के साथ आगे बढ़ना, इस जज्बे को हमने आगे लेके जाना है। हमने कोशिश करनी हम बाकियों से बेहतर बने। इसमें जो सबसे बेहतरीन मिसाल थी ना हजरत उकाशा की है, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे होंगे 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे, तो उन्होंने फटाफट से अपने बारे में कहा था ना कि दुआ, तो हुजूर पाक ने कहा कि ये सबकत ले गए तुम लोगों में से। एक और नबी ने, सॉरी, एक और सहाबी ने कहा बाद में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उकाशा तुम में इन सब में से सबकत ले गए। ठीक है, सबकत कहते हैं आगे बढ़ना, बाजी ले जाने को। तो इस जज्बे को कहा नेकी के कामों में इस्तेमाल करना है। इसके बाद है रब्बी, और रब और बी। तो अगर आपको टुकड़े दिए मुसाबकत थे रब और उसके साथ छोटी या लिखी हो, तो ये है रब और या अपनी वाली, रब्बी, ए मेरे रब। जैसे जिदनी में एक या है, रब्बी के अंदर भी है, लेकिन वो नजर इसलिए नहीं आ रही कुरान पाक में इसकी जरूरत नहीं समझी गई, इसको जेर के साथ बता दिया गया कि अंडरस्टूड है, ये इसके अंदर है, मौजूद है। ए मेरे रब, जिद, जिद उसी तरह जैसे हमने फेल अमर किया ना, इफअल वगैरह, जिद, जिद अलग कर लेंगे, ज्यादा कर। दुआ है कि ए मेरे रब ज्यादा कर। अब ये जो जिद में हम वो दरख्वास्त या दुआ कर रहे, हुक्म नहीं दे रहे ना, अल्लाह ताला को हुक्म तो नहीं देते। इसके बाद नी वो मेरे वाला आ गया। इसके बाद है इल्मन, इलम में, ये हमारा आलिमा के टेबल से मस्दर। आप देखिएगा कितने सारे मस्दर आपने यूज भी कर लिए ये अपने इसी कोर्स में। पुराने पाक में तो आपको बेतहाशा सारे अल्फाज मिल जाएंगे। यानी कि ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म, और इस दुआ को आपने अपनी डेली बेसिस वाली दुआओं में शामिल रखना है। इसके बाद है अल्लाह जी, जिसने, अल्लाह जी की जमा क्या है? अल्लाह जीना, अल्लामा सिखाया, बिल कलम, कलम के जरिए। यहाँ पर कलम की अहमियत भी बता दी गई कि आप जो लिखते हैं, आपने याद किया, लिखा, उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो कलम जो है ये हमारी जिंदगी में मौजूद रहना चाहिए। अय्युकुम, कौन है तुम में से, अहसनु, बेहतर, अमला, अमल में। ये आमिला जो हमने टेबल किया उसका मस्तर भी आ गया। ठीक हो क्या? कौन है तुम में से जो बेहतर है अमल में, यानी कि अमल देखे जाएंगे सिर्फ सूरतों और किसी की मालो दौलत की वजह से किसी के जो अमाल को बेहतरीन नहीं कहा जाएगा, बल्कि जो हम अमल करते हैं नेक अमल, वो जो आगे हमारे काम आएंगे उन पे हमने फोकस रखना है। और यहाँ पर हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हो गया है सेशन कंप्लीट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कर लें, ताकि फिर हम इसको बंद करें। तो फिर आप करेंगे सिस्टर हफ्सा के साथ अपनी ग्रामर पार्ट की रिवीजन। जी, कोई अगर आपका इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर हम इसको हैंड ओवर कर देते हैं सिस्टर हफ्सा के। ऐसा नहीं पूछना था कि मुसाबकत किन चीजों में होनी चाहिए। नेकी के कामों में। ठीक है, नेकी के काम और कौन कौन से हो सकते हैं? आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि अल्लाह ताला आपको किस चीज के लिए चुन ले। हो सकता है कि आप किसी को खाना खिलाने वाले बन जाएं। इसी तरह से जब नमाज है अव्वल वक्त में पढ़े, अजान हुई है, सारे काम छोड़ के कोशिश करें कुरान पाक को अब जहां जहां मौका मिल रहा है सीखने का सीखें। ठीक हो गया जी। मुसाबकत तो नेकी के कामों में, जितने भी नेकी के काम है, कोई खास एक स्पेसिफिक नहीं, हर नेकी का काम।
चलें जी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कुछ वो नोट डाउन करके अपने टीचर से भी पूछ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफ़ीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।